यशायाह भविष्यद्वक्ता का 43वां अध्याय का पहला वचन पढ़ता है। आइसाया चैप्टर 43 फर्स्ट वर्स। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब योग कहता है। Now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel. None other than God, the sovereign Lord, is speaking. सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे चुरा लिया है। Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। निस्संदेह इतने ऐसे जोर लगाकर परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तुझे चुरा लिया है, अर्थात मैंने तुझे गोद लिया है और तू मेरा ही है। मत डर। I have delivered you, I have redeemed you, I have adopted you. Don't fear, don't be afraid, cause you are mine, says the Lord. Hallelujah. परमेश्वर स्वयं हमसे कहता, तू मेरा है, इसलिए मैंने चुराया, इसलिए मैंने उद्धार किया, इसलिए मैंने अपनाया, that you may continue to be mine. Fear not, says the Lord. हमें लगता था कि हमें कुछ उसको देना है, बहुत कुछ समर्पण करना है, वैसे गुलाम बनकर रहना है। उसका मतलब यह नहीं है। आमेन। When I am all for him, he takes over all my worries, all my fears, all my anxieties, all my issues. जब मैं उसका अपना जन बनता तो सिर्फ मैं उसकी दास्ता में बने रहकर उसकी सेवा करने वाला ही नहीं, वो मुझको पूरा पूरा अपनाता है। कहते मत डरो, डरना नहीं है। मेरा डर, मेरे संदेह, मेरी कमजोरियां, मेरे हर विषय, मेरे हर समस्या वो अपने आप ले लेता है। आमेन। He bears my burdens. This is a beautiful privilege. Hallelujah. ये बहुत महान एक विशेष अधिकार है। This is not a weight, a heavy weight laid on my shoulders, but rather it's my laying all my weight upon his mighty shoulders. मेरे कमजोर कंधे पे और भी कुछ बोझ लगाने वाली बात नहीं है यह, परंतु मेरा सारा बोझ और चिंता उसके कंधे पर लगाने वाली बात है। I would say amen to it. मैं इसके लिए आमीन कहूंगा। हाँ प्रभु, मैं तेरा ही हूं और मैं तेरा ही बनकर रहूंगा। I'm yours alone and I will continue to be yours and yours alone. मां के बढ़ता उसका अगला अध्याय में नजर डालता, 44 का बहुत परिचित वचन, 44 चैप्टर 5 वर्स 5। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। Oh, look at this, look at this. One will say, I am the Lord's. Another will call on the name of Jacob. Another will write on his hand, the Lord's, the name himself by the name of Israel. Hallelujah. He will name himself by the name of Israel. लोग हालेलुया बड़े गर्व से कहेंगे, amen, with great positive pride. They would say that I belong to my blessed Lord, though I am a child of Jacob, an offering of Jacob. मैं याकूब वंशी है, लेकिन साथ साथ मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। Though weak and frail, I belong to the Lord. Amen. मैं याकूब वंशी जरूर हूँ, लंगड़ने वाला जरूर हूँ। हाँ, I may be limping as I walk along. Abba, I may look slant even as I stand. मैं खड़ा रहता तो टेढ़ा लगेगा, मैं चलता तो लंगड़ते चलता होगा, लेकिन मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया, हालेलुया। कहते
Proudly you will acclaim and you will acknowledge me as your Lord, as your honor. Another will call on the name of Jacob, another will write on his hand the Lord's, amen, inscribe on his hand. उसका मतलब ये नहीं है कि टाटू करना है, उसका मतलब वो नहीं है, amen. हृदय पे लिखने वाली बात है यार, amen. You can tattoo anything. You can put bumper sticker on the car. They're all good. I do not know whether they are good. कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं है यार. ये हृदय के बीच पर खोद कर लिखने वाली बात है. I am the Lord's. Amen. This is to convince myself that I belong to the Lord. This is to confess to the Lord that I belong to the Lord. Hallelujah. This is to shout at the face of the enemy that I belong to the Lord. Amen. ये अपने आप को यकीन दिलाने वाली बात है. ये परमेश्वर के सम्मुख कबूल करने वाली बात है. ये दुश्मन के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने की बात है. हालेलुया. ഞാൻ അവന്റെ ദത്രേ. ഹാലലുയ. ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും. അമേൻ. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും, എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും. ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയും, ഞാൻ നിന്റേത് മാത്രമാണെന്ന്. ഞാൻ ശത്രുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റേതാണെന്ന്. ഹാലലുയ. ഞാൻ യാക്കോബ് വംശിയാണെങ്കിലും ആമേൻ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റേതാണ്. ഹാലലുയ. മുടങ്ങി നടക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മേൽ ചാരി നടക്കുന്നവനാണ്. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവന്റെ പേര് കൊത്തി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാലലുയ. मैं कलीसिया का संतान हूं, इसराइल का नाम लेगा वो. मैं कलीसिया का संतान हूं, मैं यीशु के शरीर के भाग हूं. हालेलुया. I would say I belong to the church of God. I am a member of the body of Jesus Christ, my blessed Lord. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, हम एसेकियल भविष्य तक यगेस्केल के पास जाता है. उसका 16वां अध्याय में नजर डालता है. Book of Ezekiel the prophet, chapter 16, verse 8. मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी. इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधे, और तू मेरी हो गई. प्रभु यहोवा की यही वाणी है. When I passed by you again, I saw you. Behold, you were the age for love. I spread the corner of my garment over you, and you became mine. Hallelujah. Cover your nakedness. I made my word to you and entered into a covenant with you, declares the Lord God. You became mine. You became mine. Hallelujah. प्रभु कहते, मैंने तुझे जन्माया था जरूर, लेकिन तूने महिमा को नष्ट कर दिया. गिर गया था, भड़कती थी, लेकिन मैं आया दोबारा. Amen. I had created you. I had called you, but you drifted away. You wandered around. But I came when you were just about to be destroyed by people. लोगों के कारण तू नाश होने पर था. तेरे यौवन में मैं आया. You were naked. You had forfeited the glory of God. You had forfeited the covering of the feathers of my wings. तूने सारी चीज को नष्ट कर पड़ा था, नंगा होकर पड़ा था, महिमा को नष्ट कर दिया था. मेरे पंखों की आड़ में से तू निकल गया था. You struggled out of my shadow, but I came, amen, seeking for you. I clothed you, amen, for which I had to tear myself down. मैं आया, अपने आप को फाड़ कर तुझे पहनाया. amen. तेरे साथ वाचा बांधा, the new covenant. amen. I came when you are just about to perish, when you are just about to be destroyed forever by the world. दुनिया तुझे नाश करने पर था. मैं आया, सही समय पर आया, अपने आप को फाड़ कर तुझे पहनाया. I tore myself down as to clothe you, as to cover you.
Amen. And your mind says the Lord. Your doubly mind says the Lord. तू मेरा ही है. यीशु कहते आज मुझको कि तू मेरा है. मैंने इतना बड़ा कीमत चुकाया है. I paid such a heavy price so that you be mine and mine forever. Hallelujah. Will I deny? मैं इनकार करूं क्या? नहीं प्रभु, मैं हाँ कहता. मन फिराऊ पश्चाताप के साथ में आमेन कहता प्रभु, आमेन कहता. The world would have spoiled me. The world would have abused me. The world would have thrown me out after the use as rubbish and garbage. दुनिया में रख सत्यानाश करने पड़ता. दुनिया में दुरुपयोग कर मुझे फेंक देता था कचरे के समान. तूने मुझे सही समय पे गोद लिया है, अपनाया है. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद. हम आगे बढ़ता, उसका 18वां अध्याय में नजर डालता. बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 18 and verse 4. एजेकियल 18:4. देखो सबों के प्राण को तो मेरे हैं. Man, behold, all souls are mine. But the soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul whose sin shall die. कहते सब मेरा है. जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है. दोनों मेरे ही हैं. जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा. I have always wanted to possess you, dear child. मैं सदा सर्वदा तुझको अपना आप का माना है. अगर आप बलवा करो तो, पाप करे तो तू मेरा बिना नहीं रह सकता. I have always cherished and treasured you as mine own, my very own. But if you rebel and sin, you cannot be my child. That's a warning and an exhortation both. वह हमें प्रोत्साहन देने वाली बात है कि हम उसका है. उसने चाहा है हमें अपना बना कर रखने को. He always desired to treasure us forever as his very own. उसका अपना रूप असंतान के रूप में बना कर रखना वो चाहता. He's not greedy. He doesn't want to show off that so many people follow me. No, dearly beloved, he doesn't want you to be destroyed by the evil one. He cannot suffer to see I being tortured forever by the devil. वो ये सह नहीं सकता कि उसका संतान दुश्मन के हाथ में पड़ के सत्यानाश किया जाता उसके साथ, और वो सदा के लिए सताया जाता. उसमें से मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु कहता तू मेरा ही है. जैसे मैंने बीते हुए दिनों में संतों को अपनाया था वैसे तुम है. As the fathers of the church, you also belong to me. पितरों के जैसा तुम ही मेरा ही है. But take care never to fall into the trap of the enemy. दुश्मन के जाल में ना पड़ने दे, ना पड़ने को देखो. सचेत रहो. हम आगे बढ़ते वहां से हम जुना नियम का अंतिम पुस्तक में आता. जुना नियम से आज विदा लेने के लिए वही एक अच्छी तरीका है. बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10. मलाकी पुस्तक का 3 अध्याय का 10वां वचन पढ़ते हैं. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे. Bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house. और सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं क्या नहीं.
Put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. हालेलुया. प्रभु कहते तुम पछताओगे नहीं, पूरा पूरा समर्पण करोगे तुम. ये दशमांश देने वाली बात नहीं कहता मैं. जो ना नियम की जो जो ये बात है, यह एक अति सुंदर दृष्टांत है, परछाई है. This is a shadow of the real spiritual reality. कहते ले आओ, सब कुछ ले आओ, अपने आप को ले आओ, अपना सब कुछ लेकर आओ, वेदी पर लेटाओ. Offer yourself and all that you have on the altar, that I may richly bless you with life abundant. बहुत आयत का जीवन से मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा. You will never lack anything. कभी घटी नहीं होगी. Please don't limit it to only the earthly provisions. ये संसार की जो 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 शारीरिक की जो बात है, उससे उसको सीमित नहीं रखना. आहार और मकान की बात नहीं है, यह उससे बढ़कर है. सारी स्वर्गीय आशीषों से हालेलुया वो हमें आशीर्वादित करता. He would bless us with all the heavenly blessings without measure, without measure. I'll be a fool to limit it to only the material blessings. ये भौतिक आशीष के ऊपर जाते मैं उसको बहुत सीमित कर देता. I make my God very small. I limit my God. मैं परमेश्वर को सीमित करता, मैं उसको छोटा समझता. ऐसा कहते हुए दशमांशी शिक्षा नहीं है प्रभु हमें दे रहा. यहां से प्रभु कहते सब कुछ लेकर आओ और देखो, मुझको परखो. Hallelujah. I would say amen to it. हम आमीन कहते हम आएंगे. हम लज्जित नहीं होगा. We will not be put to shame. We will not be frustrated. हम नाराज नहीं होंगे. We wouldn't have to regret it. Amen. हम पछताएंगे नहीं. थोड़ा मैं मेरे लिए रखता तो मैं पछताऊंगा. If I keep a portion to myself, then only I will repent. Sometimes repent for my entire life and also for eternity. जैसे हम न्यायों में पढ़ते हैं, प्रेरितों के कामों को पुस्तक में पढ़ता है, अनन्यास और सफीरा के विषय में, कुछ अपने लिए रखने से बहुत कुछ नष्ट हुआ. नहीं प्रभु सहायता कर, मेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर. May the Holy Spirit help me to lay everything of myself and all that I have on the altar, that I may continually be thine and thine forever. मैं सदा सर्वदा तेरे बन के रहे और सिर्फ तेरा बनकर रहे. यीशु के नाम में आमेन, आमेन. All my resources, all my potential, all my gifting is for the Lord. It's not for the world. It's not to entertain my friends. It's not to entertain the world. दुनिया के मनोरंजन के लिए नहीं है, दुनिया वालों को खुश करने के लिए नहीं है. प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है. All that I am blessed with is for the glory of God, is for the extension of the kingdom of God. परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है. जो भी प्रभु ने हमें दिया है दुनिया का मनोरंजन करने के लिए नहीं है, मित्रों को खुश करने के लिए नहीं है. आमीन. अभी हम नया नियम में नजर डालते हैं. माफ करना, मत्ती का सुसमाचार से शुरू करते हैं. Gospel according to Saint Matthew chapter 5 verse 16. इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें. In the same way let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Oh hallelujah. परमेश्वर महिमा पाए मेरे बर्ताव से, मेरे काम से, मेरे जीवन की रीति से. Because of my lifestyle, because of my footsteps, because of my decisions, man,
because of my walk, may God the Father receive more glory from even the people of the world. दुनिया वाला आश्चर्यचकित, हालेलुया, परमेश्वर पिता को महिमा देना चाहिए। हालेलुया, ये जीवन में होता तो जीवन कितना धन्य है। मेरे कामयाबी को देख कर नहीं, मेरे खूबसूरती को देख कर नहीं, मेरे संपत्ति को देख कर नहीं, मुझसे भी कितने अति कामयाब लोग दुनिया में हैं, मुझसे अति संपन्न लोग कितना दुनिया में हैं, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोग कितने हैं दुनिया में। वो देखकर प्रभु को वो लोग कोई महिमा नहीं देता। There are people who are wiser than me. There are people who are richer than I am. There are people who are smarter and more accomplished than I am. And God doesn't receive any glory because of that. But when my walk is according to the Word of God, when I keep myself so distinctly separate from the world, for them to see a marked difference in my character, in my choices, and in my priorities. Hallelujah. They will ascribe more glory and honor to God. जब मेरा जीवन की हर अवस्था, हर कदम में, मेरा निर्णय में और मेरा जीवन की जो रीति है उसमें, मेरा स्वभाव में वो लोग ऐसा फर्क देखे तो परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। It's not of them influencing me, but it's all about my influencing them to seek my God. मेरा परमेश्वर की ओर वे लोग नजर उठाने के लिए निर्बंधित हो जाए, हालेलुया, तब मेरा जीवन धन्य है। When they are more than persuaded to look up to my God, seeing my life, then God the Father will be glorified. तब पिता परमेश्वर प्रसन्न होता। Hallelujah. When people come to you, I see non-believers going to God's children when they have to take such crucial decisions in their family for their children, whether it be studies, whether it be their marriage. I've seen them seeking the counsel and blessing of men of God. They are not great believers, but they have seen the difference that God has made in the lives of these servants of God. परमेश्वर के जन के संतान में, परमेश्वर के बच्चे लोगों में परमेश्वर ने क्या फर्क लाया है, कैसा अपने लिए अलग किया है, वो देख कर दुनिया वाले भी आते हैं। I can cite such stories, many of them. Such young men and women of the world seeking the counsel and blessing of God's servants to make such crucial, serious decisions in their lives. जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण बात के लिए कितने हैं ऐसा है। Praise God. प्रभु महिमा पाए हमारे जीवन में। खास कर मैं ऐसा होता तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। How I wish that I could be such a servant of God, such a child of God. That people would seek my God and His blessings and His deliverance. Amen. वहां से आगे बढ़ता, छठवें अध्याय में चले जाता, उसका छठवां अध्याय का 21 और 24 पढ़ते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। For where your treasure is, there your heart will be. Hallelujah. My time, my thoughts are centered on what? मैं किसके ऊपर चित्त लगाता, उससे मुझे पता चलेगा what my priority is.
Hallelujah. Then I know what my priority is. God's Spirit speaks through Paul that some people try to please men. I don't want to elaborate. And their thoughts are centered around such things. Some people, they keep on focusing on the things of the world, the entertainment. मैं सोचता कि मेरा हृदय में हमेशा आने वाली सोच क्या है, मैं किसके ऊपर चित्त लगाया है। परमेश्वर के दास कल कह रहा था कि एक आदमी अगर एक पिक्चर भी देखता, एक मूवी देखता, दोबारा उसको देखने का मन करता है बिकॉज ऑफ वन सीन और बिकॉज ऑफ सम स्टंट सीन और बिकॉज ऑफ सम हॉरर, ही इज फॉर श्योर under the influence of the evil spirit. हमने एक दृश्य देखा, something that is attractive, and I keep going back to it. I have already come under the influence of the evil spirit. एक पिक्चर भी देखे, उसका एक दृश्य हो, maybe a romantic scene or a horror scene, and if I am kind of thrilled to watch it again and again. I have a kind of a temptation to go back to it again. I'm already under the influence of the evil spirit. If I seen something on the way, or I heard a story, or I read something which is of the world, which is of tickling nature, मुझे इसे रोमांचक बनने वाली बात है, मैं 2 बार 3 बार वो सोचता तो मैं शैतान के अधीन है। तेरा मन वहां जहां है वहां, हालेलुया, तेरा संपत्ति जहां है वहां तेरा मन रहेगा, तेरा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। By which I know whether I belong wholly to the Lord. मैं पूरा यीशु का ही हूं या नहीं, वो समझना बहुत आसान है। Does he fill my heart? Does he saturate my thought life? वो मेरे हृदय को भर देता है क्या? मेरा सोच विचार उसके ऊपर है क्या? मेरा सोच का केंद्र वो है क्या? Is he the source of my joy? मेरा खुशी का कुंड वो है क्या? उससे मुझे पता चलता। 24 पढ़ता, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। No one can serve 2 masters. This sets me to thinking. इधर मुझे रुकना पड़ता है बार बार जब मैं पढ़ता तो, Are there 2 masters in my life? 2 स्वामी है क्या मेरे जीवन में? प्रभु कहते हैं नहीं हो सकता, तू मेरा नहीं हो सकता। If you have yet another master, however small he may be, maybe he warrants, he demands only 10% of my time or 1% of my time. ऐसा कोई भी स्वामी है मेरे जीवन में 1% समय चाहते वो, तो मैं यीशु का नहीं बन सकता। उसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई हेलो बोलेगा तो मैं हेलो नहीं बोलूंगा, उसका मतलब वो नहीं है, चित्त पे नहीं है, चित्त नहीं लगाता। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। There will be a day when I will have to choose between the 2 when it comes to the priorities in my life. मेरे जीवन में ऐसा एक घड़ी आ सकता जब मैं जीवन में प्रमुखता इन दोनों स्वामियों में एक को देना पड़ेगा मुझको। I will do that. To please that person, I will adopt a crooked way. To please that person, I will tell lies. To please that person, I'll disobey the elders. मेरे जीवन में ऐसा हो सकता, एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए मैं प्राचीनों को टुकड़ा देगा, आज्ञा उल्लंघन करेगा, झूठ बोलेगा, धोखाबाजी करेगा,
Though I knew that this is not I wanted to do, ये मुझे करना नहीं है, यीशु स्वामी को ये पसंद नहीं है, यीशु स्वामी ये नहीं चाहता. I bend myself down at thy feet, O Master. मैं झुकता हूँ. कई बार मैंने ऐसा किया है, कई बार ऐसा किया है. I have told blatant lies and tried to justify it. कितने बार मैं मेरे झूठापन को सही साबित करने का प्रयास किया. प्रभु माफ कर, प्रभु माफ कर. मैं तेरा ही बनकर रखूंगा. प्रभु मुझे दो स्वामी की सेवा नहीं करना है. എനിക്ക് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ട കർത്താവേ, ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും മറ്റൊരു യജമാനന് കൊടുത്താൽ ഞാൻ നിന്റേതല്ലാതാകുമെന്ന് നിന്റെ വചനം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലജ്ജയോടെ ശിരസ് താഴ്ത്തി ഞാൻ എന്റെ പാപമേറ്റു പറയുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റേതായി നിന്റേത് മാത്രമായിരിക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട്. അവാ എനിക്ക് രണ്ട് യജമാന്മാർ വേണ്ട കർത്താവേ. ഞാൻ നിന്റെ അടിമ, ഞാൻ എന്നേക്ക് നിന്റെ അടിമയായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. May the Holy Spirit help me to be under just one master, the one who laid down his life for me, the one who shed his life blood for me. मैं यीशु का दास बनकर रहना चाहता. वही मेरा स्वामी है, जिसने मेरे लिए जीवन दिया, जिसने मेरे लिए लहू बहाया. हालेलुया. मैं आगे बढ़ता वहां से मरकुस के सुसमाचार में चला जाता. We move from there to the Gospel according to Saint Mark and chapter 12. मरकुस का सुसमाचार के 12वें अध्याय में से हम 41 से पढ़ते हैं. वो मंदिर के भंडार के सामने से बैठकर देख कर रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं. बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला. इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अकेले के बराबर होती है डाली. तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी गट्टी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है. Jesus was observing. Jesus observes when we give to God. जब हम परमेश्वर को देता है तब यीशु मसीह की दृष्टि उसके ऊपर है, कटी नजर रखता हुआ. यीशु को उसमें से एक पैसा नहीं मिलेगा. Jesus cannot take a share of that which fell into the treasury of the house of God, offering box. He could not take anything out of that. So why was he interested? फिर दिलचस्पी इतना क्यों है? क्योंकि उसने देखा एक गरीब विधवा आया, amen, who would put 2 small copper coins, सबसे छोटा जो सिक्का था उसमें से 2 डाला. That is all what she could earn, amen, the previous day. उसने पूरा दिन काम कर कर जो कमाया 2 सिक्का ने कराया, भंडार में डाला. हालेलुया. यीशु इतना खुश हुआ. We see Jesus getting excited and exalting. Hallelujah. यीशु इतना हर्षित होता, 6 लोगों को सबको बुलाता. एक आदमी आकर 10 करोड़ रुपया डाला, वो दिखाने के लिए नहीं. Not because of one man came and put an offering of 10 crores, but because she found a widow who would put all of herself and all that she had. Amen. When she put all that she had, it amounted to putting herself into the offering box. Offering box. Hallelujah. ये अपने आप को देने वाली बात है. सब कुछ
यीशु को प्रसन्न करने वाली बात यह है, there were many who gave much more out of their riches. People, लोगों ने बहुत कुछ दिया, बहुत ज्यादा दिया, अपने संपत्ति से कुछ अलग कर दिया. Hallelujah. Will it be told about me that I have laid everything at his feet? मेरे विषय में एक दिन ऐसा कहा जाए कि मैं सब कुछ उसके चरणों पे अर्पित किया है, अर्पण किया है. My desires, my dreams, my ambitions, my aspirations, my goals in life, everything at the feet of Jesus. मेरे विचार, मेरी सपनाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरी इरादाएं, मेरे भविष्य, मेरे संतानों का भविष्य, सब कुछ, कितने कितने सपनाएं, सब कुछ मैं उसके चरणों में अर्पण कर दूंगा. And say yes and amen to his blessed will. उसके हित के लिए मैं आमीन कहूंगा, जी हां कहूंगा. यीशु प्रसन्न होगा. मैं सिर्फ यीशु का बन के रहना चाहता हूं. वहां से हम आगे बढ़ता, लूका का सुसमाचार में चले जाता, पहला अध्याय का 46 पढ़ता, फर्स्ट चैप्टर 46. तब मरियम ने कहा, मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करता है. आमेन. मेरी सेड, my soul magnifies the Lord. Amen. She is all to magnify the Lord. मैं मरियम का बहुत तारीफ करता, क्योंकि ऐसी महिला है, कभी भी वो नहीं कहती मैं यीशु की माँ हूं तो मुझे बहुत बड़ा स्थान मिलना चाहिए, मुझे बड़ा कुर्सी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कहती वो. We will never see Mary boasting of being the mother of Jesus and claiming such prominence anywhere. कभी नहीं, कभी नहीं. She said, I am the servant of my Lord. Amen. I am the servant of my Lord. जिसको मैं जन्माने पर है शारीरिक रूप से, the one whom I will birth in the bodily form is my Lord, and I am his servant. Hallelujah. मैं उसकी दासी हूं. जिसको मैं उत्पन्न करूंगा शारीरिक तौर से, उसकी दासी में हूं. और वो कहता, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता. My soul magnifies the Lord. Hallelujah. धन्य जीवन है वो, धन्य जीवन है. What a blessed life it is. If my life is to glorify my God, to magnify my God, I am entirely his and he is mine. मैं पूरा पूरा उसका हूं और वो पूरा पूरा मेरा है. Every action of mine, मेरा हर काम, every word of mine, मेरा हर शब्द, every thought of mine, मेरा हर सोच, every intention of my heart, मेरे मन की हर इरादा. Hallelujah. My destination and my aim, मेरा लक्ष्य और मेरा मकसद परमेश्वर को महिमा देने वाली बात हो तो मैं धन्य हूं. Hallelujah. എന്റെ പ്രാണൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് മറിയെ പോലെ പറവാൻ ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതായി തീരട്ടെ. എന്റെ വിചാരങ്ങളും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും എന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും എന്റെ ചിന്തകളും എന്റെ ലക്ഷ്യവും എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായി തീരട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനും പറയും, ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ. I serve only one master. Mary would serve just one master. I am his slave. My life is to magnify him. मैं उसका दास हो, मैं उसकी दासी हो. ये मेरा जीवन उसको महिमा देने के लिए, उसको बढ़ाई देने के लिए है. वहां से आगे बढ़ता, उसका 6वां अध्याय में आता. We move from there to 6th chapter and read at least 38. Give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measuring you use, it will be measured back to you. Hallelujah. कहते दो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा.
लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. यू विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू विल नॉट रिग्रेट. आमीन. तू नाराज नहीं होगा, तू पछताएगा नहीं देने से, ऐसा प्रभु कहता. How foolish I will be to limit it to the physical giving of money. यह सिर्फ पैसा देने वाली बात नहीं है. मुझे याद आता रूत की. रूत ने बोवस को क्या दिया था कि बोवस ने ऐसा ही दिया उसको. बोवस ने उसको ऐसा ही दिया. गुड मेजर, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, he would put it into her lap. Amen. वैसा ही किया. बोवस ने क्या किया, पूरा नाप दबा दबा कर दिया, हिला हिला कर दिया और उबरता हुआ उसके गोद में डाला. उसने क्या दिया था, समर्पित की थी वो. She surrendered herself to Boaz. I will do that. He is my master. Amen. He may be my bridegroom, but he is my master. वो मेरा दुल्हा जरूर है, लेकिन वो मेरा स्वामी है, वो मेरा प्रभु है. इज माई लॉर्ड. इफ आई सरेंडर माई सेल्फ, चूज टू बी अंडर हिज क्लॉक, अंडर हिज मैंटल, टेल आई विल नेवर रिपेंट, आई विल नेवर रिग्रेट इट. अगर मैं उसके चादर के नीचे हो जाऊं, चादर उपदेश को दिखाता है. The blanket, the mantle shows the doctrine, the counsel. If I bring myself totally under it, not near it, उसका समीप नहीं, under the counsel of God, under, totally under the word of God, so I will never regret it. Amen. All that I need will be given to me because my heavenly Father knoweth. पिता परमेश्वर जानता है मैं किसकी जरूरत है, देगा. दबा दबा कर, ऐसा हिला हिला कर गोद में डाला जाएगा. I don't need to chase it. मुझे पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, दिया जाएगा. When I seek His kingdom and His righteousness, परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की मैं खोजी बने रहूं तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो मुझको जरूरत है वो सब कुछ हमें बहुतायत से दिया जाएगा. I will be given without measure, boundlessly. आगे बढ़ता यूहन्ना का सुसमाचार में चले जाता. We move from there to John chapter 3. हम बहुत जो बात भौतिक चीजों के विषय में नहीं कहता, क्योंकि सब लोग उसको प्रचार करते हैं और आप लोगों ने बहुत सुना है. I do not dwell on a lot of the material blessings because people talk about it day and night, and we have heard a number of times this. So we don't have to spend so much of time. I'm not in the least saying that God will not bless us materially. भौतिक रीति से प्रभु हमें आशीर्वादित नहीं करेगा, ऐसा मैं कभी नहीं करता. प्रभु ने मुझको आशीर्वाद दिया है, आपको भी देता है वो. Hallelujah. Yes, bless me, he will bless you as well, even with material blessings. तीसरा अध्याय में आता 16 वचन पढ़ता. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया. For God so loved the world that he gave his only son. How do I know the Father loves me? Because he gave all that he had. Hallelujah. उसने पुत्र को ही दे दिया. By giving everything I have and the most precious thing I have, amen, I prove that I love God. में मेरा सब कुछ और उसमें मेरा अत्युत्तम चीज भी है. When I lay down everything of mine, it includes the most precious thing that I hold so close to my heart. मेरे हृदय से चिपका कर रखने वाली ऐसे अतिश्रेष्ठ बात जो मेरी दृष्टि में मेरा प्यार का कुंड को भी मैं अर्पण करूंगा. पिता परमेश्वर ने वही किया.
इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, जब पिता परमेश्वर ने पुत्र को ही दे दिया तो उसके साथ क्या नहीं देगा? Will he not give everything to us when he has never hesitated to give his son to us? Hallelujah. यह है प्रेम. Giving my best and giving my all, giving myself. God gave himself to me. He became man and laid down his life on the cross. परमेश्वर स्वयं इंसान बनकर आया, मेरे लिए जीवन दिया. He gave himself for me. Will I not give myself to him? I gave my all for thee. What have you given to me? सब कुछ मैं तुझको दिया, तूने क्या दिया मुझको? यीशु पूछता है, मैंने सब कुछ दिया, तूने उसको प्रत्युत्तर में क्या दिया? എല്ലാം ഞാൻ തന്നു, എന്തു തന്നെനിക്കായി? യേശു പൂछता, യേശു ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാം തന്നില്ലയോ? നീ എനിക്ക് എന്ത് തന്നു? ദൈവം അവനുള്ളത് മുഴുവൻ തന്നു. അവന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തന്നു. അവന്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെയും എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും സമർപ്പിക്കുമോ? हालेलुया. हम आगे बढ़ता, हम 17 वचन में पढ़ता है, as I told you, it's very very difficult for me to preach a sermon because there are questions rising up in my heart and thoughts welling up in my soul. वचन बोलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अनेक सवाल मेरे हृदय में उठते, वो सवाल मेरे ओर से उठते हैं और सोच विचार से मैं दबा हुआ हूं. ये सवाल मेरे सामने बार बार आता, मैं उसका पूरा पूरा हूं क्या नहीं है. Am I holy for Jesus? Is my all for Jesus? मेरा सब कुछ यीशु के लिए है क्या नहीं है? हम आगे बढ़ता, उसके बाद उसका 17 अध्याय में आकर 6 परे पढ़ता. 17 अध्याय का 6, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया. वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Hallelujah. यीशु कहता, तेरा जन को तूने जगत में से अलग कर कर मुझको सौंपा दिया. Oh, hallelujah. We have been chosen in Christ Jesus and have been handed over to him. To Jesus. पिता ने हमें यीशु क्रिस्त में चुन लिया और पुत्र के हाथ में सौंप दिया है. अलग किया है, दुनिया से अलग किया है. ये separated us. Amen. Handpicked we off from the worldly. संसार के लोगों में से परमेश्वर पिता ने हमें चुन कर लिया है और पिता के हाथ में सौंपा है. Amen. Amen. वे तेरे थे. From the beginning they belong to you. और तूने उन्हें मुझे दिया है. You gave them back to me. You gave them to me. और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है. How they will continue to be mine? By keeping my word. Amen. Oh, they have kept your word. When they have kept your word, so they will continue to be mine. It will not be a past story of an election. बीते हुए दिनों में प्रभु ने मुझे चुन लिया, सिर्फ वो बात नहीं है. पिता परमेश्वर ने पुत्र के हाथ में हमें सौंपा था, ये बात भी नहीं है. It is not that he had delivered us, handed us over into the hands of the Lord Jesus. Not only that, we will be kept by the word, even as we keep the word. हम जब वचन का पालन करता, वचन हमें संभाल कर रखेगा, सदा के लिए उसको बना कर रखेगा. धन्य हो परमेश्वर. हालेलुया. Blessed be the name of the Lord. वहां से और 2 वचन पढ़ना है. 17 अध्याय से हमें 9-10 पढ़ना है. मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे मेरे हैं. I have totally possessed them
Holy possess them, Jesus says. मेरे दोनों हाथों से उनको स्वीकारा है, amen. सीने से लगाया है. I have tightly embraced them, amen. And they are mine. They are mine. I pray for them. I intercede for them. He continues to intercede for us. वो अभी भी बीच वही कर रहा है, हमारे लिए कर रहा, दुनिया के लिए नहीं है. Amen, amen. Look at my privilege and yours too. आपका और मेरा ये विशेष अधिकार को देखो. Hallelujah. ये jealously possessed us. Amen. वो इतने धुन से हमें अपनाया है और हमारे लिए निरंतर विनती करता है. Amen. Amen. All mine are yours and yours are mine. Hallelujah. मेरा जो भी है वो तेरा ही है पिता, और तेरा जो भी है वो मेरा है, क्योंकि हम एक है. Amen. इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है, and I am glorified in them. Hallelujah. He हुआ था. This is a word of prophecy from Jesus. यीशु ने भविष्यवाणी किया यहाँ, यीशु ने भविष्यवाणी किया, तब उसका महिमा नहीं हो चुका था. 6 लोगों के द्वारा उसका महिमा होगी. पतरस खड़ा हो जाएगा, 3000 एक दिन उतार पाएगा. पतरस और यूहन्ना, हालेलुया, जाएगा, मंदिर में जाएगा, लकवे खड़े किया जाएगा. यीशु उसका संग नहीं है. Hallelujah. Jesus will be glorified by and through his servants and his saints and his children. Hallelujah. This is a prophecy from the mouth of Jesus. When I keep his word and walk according to his blessed will, oh, Father and Son will be glorified. Hallelujah. पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के कामों के कारण जो मेरे द्वारा किया जाएगा, महिमा पाएगा. Hallelujah. Because of all that the Holy Spirit does through us, God the Father and God the Son will be glorified. Amen and or amen. हम आगे जाता हमें प्रेरितों के पुस्तक में चले जाना है, उसका 27वां अध्याय में चले जाना. We move on to 27th chapter of the Acts of the Apostle, और उसमें से 23वां वचन पढ़ते हैं. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा. Hallelujah. For this very night there stood before me an angel of the God to whom I belong and whom I worship. Hallelujah. I belong to him. I belong to him. Even in the hour of the shipwreck, his angel will stand by my side. Amen. जहाज डूबने पर है, घोर अंधकार से भरी रात है. Amen. डराने वाली तूफान और आंधी है. But the angel of the Lord will stand by me because I am wholly his son. I serve my master. I have no two masters. मेरा दो स्वामी नहीं है. जिस परमेश्वर की सेवा में करता और जिसका मैं हूं. Amen. I can only serve him if I am wholly his. अगर मैं उसका पूरा पूरा बनता बन के रहता तो ही मैं उसकी सेवा कर सकता पवित्र आत्मा में. I can serve him in the spirit. I can worship him in the spirit. Only if I am wholly his. मैं पूरा पूरा उसका बन कर रहता तो ही मैं उसकी सेवा कर सकता. और उसने मुझको अपनाया है, मैंने उसको भी, उसका दूध कड़ा रहेगा. आमेन. When there are howling winds threatening me, and when my ship is just about to sink in the pitch darkness of the night, the angel of the Lord will stand by my side because I am wholly his, and whom I serve him and him alone. Hallelujah. You will not regret it. You have given yourself wholly to him, says the Lord. प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, तू नाराज नहीं हो, तू पछताएगा नहीं. अपने आप को पूरा पूरा प्रभु का हाथ में सौंप कर पछताएगा नहीं. आमेन, आमेन. बाकी सब आप जानते हैं. How he received a promise that if they stay on board, none of them will perish. इतना ही नहीं, पौलुस को ये वायदा किया, पौलुस को ये वचन दिया कि जो कोई जहाज पर बने रहेगा उसके साथ कोई भी नहीं मिटेगा. आमेन और आमेन. आगे बढ़ता रोमियो की किताब में चले जाता, रोमियो की पुस्तक पत्रिका
रोमियो की पत्रिका का 6वां अध्याय के 13वां वचन। अभी पत्रिकाओं में आ गया तो हमें थोड़ा जल्दी चलना है। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought back from death to life, and your members to God as instruments for righteousness। कहता है एक अंग भी मेरा शरीर का शैतान का अधीन नहीं होना चाहिए, एक सोच भी शैतान का अधीन का नहीं होना चाहिए, एक मेरा जो विचार है या मेरी सपना है या मेरी इरादा है वो शैतान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नॉट ए थॉट ऑफ माइंड, नॉट एन एक्ट ऑफ माइंड, नॉट ए डिजायर ऑफ माइंड, नॉट एन एम्बिशन ऑफ माइंड will be ever influenced by the devil, not even for a split second। आधा पल के लिए भी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अभी सारे चीज बहुत स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर का अपना जन बनकर रहने के लिए, to be holy his, that my all for will be for Jesus। I will see to it that not a single member of my body, not a single thought of mine, or an act of mine, or a decision of mine will be ever influenced by the devil। दुश्मन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने में नहीं दूंगा, not even for a second, आधा पल के लिए भी मैं नहीं दूंगा। हम आगे बढ़ता, हम उसका 8वां अध्याय में नजर डालता। We move from there to 8th chapter and read 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। Likewise the spirit helps us in our weakness। जैसे हमने बीते हुए वचन में पढ़ा, we have been brought back to life। हमारे हुई अवस्था से जिलाया गया है, नया जीवन प्राप्त किए हुए लोग हैं। अब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। We read in the previous verse that we have been raised from death and brought to life, and now the Holy Spirit is helping us। The Spirit helps us in our weaknesses। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता। हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ऐसी आहे भर भर कर और जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। I love this, I love this, I love this। We do not know how to pray, what to ask for। Hallelujah। But the Spirit with groanings that are not utterable, that cannot be uttered, ऐसे कराते हुए पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। जैसे हमने शुरुआत में अपने आप को याद दिलाया था, the Holy Spirit prompts many others to pray for us, and the Spirit is interceding for us। He is praying on our behalf। पवित्र आत्मा अनेकों को तैयार करता हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, बोझ देता। The Holy Spirit burdens people to pray for us with groanings, and He prays from our inner heart, inner being, जो हमारे समझ में नहीं आता, unutterable it is, it cannot be heard by us, but we know the Spirit is making the right prayer। Hallelujah। The Spirit is always trying to correct us। The Spirit is always asking for the right thing। Amen। सही चीज के लिए वो प्रार्थना करता। How comforting it is, how comforting and encouraging it is। वो कितना हमें प्रोत्साहन देने वाली बात है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग के चाहत के अनुसार प्रार्थना करता, जैसा पवित्र आत्मा ने हन्ना से प्रार्थना कराया था। How the Holy Spirit prompted Hannah to make the right prayer at the end। Earlier should have been praying that this man is accusing, this woman is accusing me, making fun of me, taunting me, so I must give a child। पहले मैं विश्वास करता कि वो अनाई से प्रार्थना करती थी कि ये औरत उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो मेरे को बहुत ऐसे टटा उठाते हैं, मुझे मेरी निंदा करती है, इसलिए मुझे कैसे भी एक संतान मिलना आवश्यक है। बाद में she came to her senses and she will pray in accordance with God's will। हम आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़ता। 12वें अध्याय में से हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हम वो वचन अच्छी तरह बाय हार्ट जानते हैं। वी नो दैट वर्ड्स बाय हार्ट। भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके
मैं याद दिलाता कि विनती करता कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. As a meaningful worship, offer your bodies as such a sacrifice, holy and acceptable to God. That is your spiritual worship. सही आराधना वह है. अभी हमें अब्राहम का याद आता. No wonder Abraham told his servants, we both will go worship the Lord and come back. Worshipping the Lord is laying myself and all that I have and my dearest ones on the altar. Hallelujah. आराधना का अर्थ ही वही है. अपने आप को और मेरा सब कुछ, मेरे सब हृदय के चिपकने वाली सब चीज को वेदी पर लटाएगा. That will be a meaningful worship. ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന അതത്രേ. എന്നെ തന്നെയും എനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് അത്രേ ശരിയായ ആരാധന. हालेलुया. बाकी सब हम जानते हैं. ऐसा करेगा तो परमेश्वर का संपूर्ण हित, हालेलुया, हमें प्रकट किया जाएगा. Then we will come to know and discern the perfect will of God. Hallelujah. And we shall be pleasers of God. Our master will be pleased with us. हमारी स्वामी इतना प्रसन्न होगा, हमारा प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होगा. हालेलुया. जब उसका संपूर्ण हित को जानकर उसके अनुसार चलेंगे तो हम आगे बढ़ता. 14 अध्याय में आता और 8वां वचन पढ़ता. यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं. अगर हम जिए या मरे, हम प्रभु की है. Hallelujah. If we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Hallelujah. हम परमेश्वर के हैं. We are His son. Whatever be the condition, the physical condition of ours, हमारे शरीर की अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, हम प्रभु की है, पूरा पूरा उसकी है. He will never disown us. In any event, He will not disown us. कोई भी अवस्था में, whatever condition we may be, He will never disown us. He will never forsake us. He will never abandon us. वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं, कभी हमें भूलेगा नहीं. हम उसका है. जीवन में और मृत्यु में हम उसके हैं. Oh, what a blessed state of affairs. What a blessed status it will be. ये कितने सुंदर बात है. हम उसके हाथों में, हम उसके हैं. उसके ही बने रहेंगे. जीवन में उसका है. ताकत में, हमें तंदुरुस्ती में और बीमारियों में, कमजोरी में, पराजय में और जय में, मैं उसका हूं. Amen. I am His and I'll continue to be His. Only His. In my hour of weakness or of strength, in my hour of triumph or of trial, Amen, I will be His. I will be His son and I am His in life and in death. Hallelujah. हम आगे बढ़ता. पहली कुरिन्थी में आता. पहली कुरिन्थी 3 अध्याय का हम 23 पढ़ते हैं. You are Christ and Christ is God's. तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है. Oh, hallelujah. What a great equation. कितना सुंदर समवाक्य है वो. कहते because you are Christ, you are of God. Oh, hallelujah. You are Christ and Christ is God. So you are automatically of God. Oh, hallelujah. I just love it. I could have never been God's own, very own. मैं कभी भी परमेश्वर का नहीं बन सकता, लेकिन क्रिस्त ने मुझको अपनाने के कारण, क्रिस्त ने मुझको गोद लिया, उसके कारण मैं पिता परमेश्वर का हूं. Hallelujah. I'm not simple dirt or worm. I am His and His alone. Amen. मैं परमेश्वर का हूं. मैं कीड़ा नहीं, मैं कचरा नहीं. मैं पिता परमेश्वर का अपना जन हूं. Amen. Behold, I am your servant. I am your child. Because we are Christ. Hallelujah. कलीसिया के संतानों से कहता है, तू परमेश्वर का है, पूरा पूरा परमेश्वर का है. Hallelujah. He has all the right on us. Amen. God has all the right on us. पूरा पूरा हक है उसका हमारे ऊपर, क्योंकि हमें यीशु ने खरीद लिया अपने लहू से और पिता के हाथ में सौंप दिया है. Jesus bought us with His precious blood.
and committed us to the Father. हम वो वचन नहीं पढ़ेंगे, फिर भी प्रकाशित वाक्य में कहते हैं यीशु ने हमें पिता के लिए एक राज्य और याजकों का समाज बनाया. हालेलुया. Jesus made us a kingdom and priests unto God the Father. Oh, what a standing. कितना अद्भुत धन्य अवस्था है यह, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. आवाज से आगे बढ़ता है और मैं क्या पढ़ता, तो हमें उससे 6वें अध्याय में जाना. We need to go to 6th chapter and read a couple of verses from there, 19-20. 6वें अध्याय का आखिरी 2 वचन. क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? Don't you know that your body is a temple of the living God, of the Holy Spirit within you, whom you have from God, you are not your own. तुम्हें बसा हुआ है पवित्र आत्मा, उसका मंदिर है तुम, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है पवित्र आत्मा, और तुम अपने नहीं हो. तुम अपने नहीं हो. You cannot be your own, says the Lord, says the word. Hallelujah. We are the temple of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर है हम, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दान में मिला है. We have been gifted with the Holy Ghost in answer to Jesus' prayer. यीशु ने विनती की और पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया. Amen. The triune God is with us. त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है. Amen. पवित्र आत्मा का मंदिर है यह, उसका भवन है यह. This is no longer my body. This is no longer my house. ये मेरा भवन नहीं है, ये मेरा खुद का घर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का है. Amen. Amen. You are not your own. मैं अपना नहीं है. Amen. You are bought with a price. ऐसे कहते, तुम्हें मोल देखकर मोल लिया गया है. हालेलुया. खरीदा गया है, हम उसका है. Amen. We no more belong to the trader. हम कोई व्यापारी का सामान नहीं है, खरीद लिया गया है. Amen. अभी मेरा मालिक अलग है, मेरा स्वामी अलग है, मेरा प्रभु अलग है. My Lord is different, my master is different, my owner is different today. Amen. अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. The only thing that God expects of you and me is that my life will be glorifying God. My body will be to glorify God, not to attract the people of the world. दुनिया वालों को आकर्षित करने के लिए नहीं है ये शरीर. ये मसल दिखाकर लोगों को मोहित करने के लिए नहीं है. Not to entice the people with my muscles or to enthrall them with my beauty. मेरा खूबसूरती दिखाकर लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है मेरा शरीर. परमेश्वर की महिमा के कारण बन जाए. My body, even my body is for glorifying God. परमेश्वर को महिमा देने के लिए है. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, हम उसका 10वें अध्याय में चले जाता और 31 पढ़ता. इसलिए तू चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो. Whether you eat or drink or whatever you do it all to the glory of God. लगता है कि ये बहुत कठिन है. बिल्कुल नहीं है. मैं कुछ भी करूंगा जो परमेश्वर के नाम की नामधराई होगी वैसा नहीं करूंगा. Whatever I will do, it will not be to reproach the name of God, to profane the name of God or the word of God. चोरी चोरी से, छुपी छुपी नहीं. मैं इधर उधर जाके खाऊंगा पीऊंगा नहीं. मैं इधर उधर घूमूंगा नहीं. मैं ऐसे की चीज चोरी चोरी से करूंगा नहीं. अंधकार में नहीं. All that I do will be pleasing to God, should be pleasing to God. जो भी मैं करूंगा, including my eating and drinking, that should be to praise God. Hallelujah. संडे स्कूल में हमें हमेशा ये कहा जाता, जो भी तुम करते हो, क्योंकि लोग पूछते, संडे स्कूल टीचर से पूछते, ये पाप है क्या, वो पाप है क्या, ये पाप है क्या. तो संडे स्कूल टीचर बड़े बुद्धिमानी, वो कहती थी कि जो भी चीज से प्रभु महिमा पाएगा और लोग उसको देखकर परमेश्वर को महिमा देगा, वही करो. All other things are eternally useless.
बाकी सब सदा के लिए बेकार की चीज है। कहते ऑल दैट इट लेट इट बी टू ग्लोरीफाई गॉड, ऐसे वहां से पढ़ता। जो भी काम करे वो परमेश्वर को महिमा देने वाली बात हो, ऐसे करते हैं, ऐसे कहता है, क्योंकि वी आर हिज सन एंड आवर जॉब इज टू प्लीज हिम एंड टू ग्लोरीफाई हिम। हम उसके हैं और हमारा जिम्मेदारी यह है, कर्तव्य यह है कि हम उसको महिमा देते रहे और उसको प्रसन्न करते रहे। हम आगे बढ़कर एफेसियों की पत्रिका में चले जाता, पहला वचन, पहले अध्याय में नजर डालता। एफेसियंस चैप्टर 1 14th वर्स, 14वां। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. Amen. He is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. उसकी महिमा का स्तुति के लिए हम बनना है। हालेलुया। और हम उसकी पूरा पूरा महिमा पाएंगे और पूरा मीरास पाएंगे, that we will receive the entire reward in His fullness and we will attain to the fullness of His glory. There is a guarantee given in the person of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है, आमीन, त्रिएक परमेश्वर का में एक व्यक्ति है, उसको गारंटर बनाकर हमें दिया है। हालेलुया। हमें याद आता है योसेफ का। योसेफ बोलते एक तुम में से एक को इधर रखो गारंटी के रूप में, ताकि मैं जान लूं कि तुम्हारा पिता जिंदा है और तुम्हारा छोटा भाई है, उसको सब लेकर आओगे। ऐसे सब कहता, छोटा भाई को जब तक नहीं लेकर आएगा गारंटी रखो इधर। आमीन। दिस इज द गारंटी that God the Father along with the Son has given to us the Holy Spirit. Amen. He says you are mine and mine forever. वो कहते तुम मेरे हो, मेरे सदा के लिए हो। Amen. As a guarantee, as the first payment, token payment, hallelujah, I gifted you with the Holy Spirit. Amen. Amen. उसने हमें गारंटर के रूप में पहले ही दिया गया है पवित्र आत्मा को। कहता है until we acquire possession of it, हमारी मीरास का पूरा बयाना पूरा हम पाएगा तब तक। आमीन। उसने हमें मोल लेकर पवित्र आत्मा को दिया है। आमीन। उसका आगे का वचन, उसका पहले का वचन पढ़े तो हमें अच्छे से पता चलता। प्रतिज्ञा की वो पवित्र आत्मा की चाप लगी है। यू बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट, ऐसा कहता है। पवित्र आत्मा का सील लगा हुआ है हमारे माथे पे, ये बताने के लिए तुम दुनिया से अलग है। परमेश्वर ने अपने पवित्र जन को अपने लिए अलग किया है। हम आगे बढ़ता विद दिस सील, पवित्र आत्मा की ये चापा से। हम फिलिपियों में आता, उसके 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 6 to 8। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। This is the privilege that we have. Amen. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Amen. ये एक विशेष अधिकार हमें दिया गया। हम उसके होने के कारण सब कुछ हम उसको बताते हैं, सारे बोझ उसके कंधे पे लगा देते हैं। Amen. We lay all our burdens upon His shoulders. We hand over all our worries to Him. Hallelujah. विनती के साथ, thanks with thanksgiving, we pray to God. Amen. Sharing our heart with Him. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। The peace of God which passeth all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. यीशु क्रिस्त में स्वर्गीय शांति को अपनाते हुए, स्वर्गीय आनंद से भरे हुए हम रह सकते तब। That is our privilege. We will not regret it that we became His and His alone. हम कभी पछताएंगे नहीं कि हम परमेश्वर का बन चुका है। स्वर्गीय शांति की पूर्णता प्रभु हमें देगा। स्वर्गीय खुशी से वो हमें आनंदित करेगा।
will gladden our heart with heavenly joy. Hallelujah. Flood our heart with heavenly peace. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो. बाकी सब कचरा है, छोड़ दो. Finally, brother, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. बाकी सब कचरा है, बाकी सब दुनिया वाला के लिए छोड़ो. परमेश्वर को महिमा देने वाली बात है, खूबसूरत बात, खुशबू फैलने वाली बात. हालेलुया. जिसे दुनिया देखे परमेश्वर को महिमा दे. आमीन. If I keep on doing what the world is doing, the world doesn't mark a difference, or the world cannot differentiate. दुनिया वाला जैसा जीते, जो भी करते उसका इंतजार मैं भी करूं, उसके साथ मैं भी घूमूं, उसके साथ उसके अनुसार मैं भी जीवन बिताऊं, तो there is no difference. That doesn't glorify God. परमेश्वर को उससे महिमा नहीं मिलता. परमेश्वर को महिमा देने वाली बात मेरे जीवन में हो. Let it be beautiful, let it be pure, let it be true, let it be glorifying God. Hallelujah. May others turn to God because of my life and my lifestyle. आपका और मेरे जीवन के कारण और जीवन के बात को देख कर लोग परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजी बने, तब परमेश्वर महिमा पाएगा. वहां से आगे बढ़ता कोलोसियों की पत्रिका में चले जाता. Colossians chapter 3. Let's do the Colossians chapter 3. हम 17 वचन पहले पढ़ता. 17th verse. वचन में या काम में जो भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो. If you do whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Hallelujah. वचन में या काम में जो भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो. जो भी करो परमेश्वर के नाम में करो. आमीन. यीशु के नाम में करो, और जिसके द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो. आमीन. I will do everything with Jesus. हमें यीशु के संग सब कुछ करना है. अगर यीशु खुशी से मेरे साथ आता तो मैं वैसे जगह पे जाऊंगा. अगर यीशु खुशी से वो चीज देखता तो वो चीज मैं देखूंगा. अगर यीशु खुशी से वो काम करता तो मैं वो करूंगा. यीशु मेरा आदर्श है. He is our example. He is our example. I'll go to places where he will gladly come with me. I will do things which he would love to do with me. I will speak words which he would love to speak. Hallelujah. ऐसे परमेश्वर का वचन आह्वान दे रहा है ताकि उससे हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. I'll thank God that I could do this with Jesus, pleasing him and with him. यीशु के संग मैंने ये काम किया और यीशु के साथ मैंने चला, जिसके कारण मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे. उसका और दो वचन है 23-24, 23 और 24 पढ़ते. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो. Whatever you do, work heartily. Amen. Do with enthusiasm as for the Lord and not for man. हम दुनिया के लिए नहीं करते, मनुष्य के लिए नहीं करते, परमेश्वर के लिए करते. Hallelujah. Whatever I do, जितना मैं कर सकता पूरा ताकत से, पूरा लगन से करूंगा. With my whole heart and full focus I will do. If I'm studying in my studies, if I'm working in my work, if I'm serving in my ministry, hallelujah. पढ़ाई में हो, नौकरी में हो या सेवकाई में हो, ऐसा करो जैसे परमेश्वर के लिए करता. मुझे याद आता, मैंने कई बार करके आपको बोर किया. एक बार वो जनवरी 26 का जो रिपब्लिक डे का मार्च था, तो मैं एनसीसी में था, तो मैं मार्च कर रहा था, थका हुआ था. Suddenly I thought I belong to the army of God. मुझे तुरंत ऐसा लगा कि I belong to the army of God, and I was in the NCC that time and taking part in the Republic Day March. So suddenly I thought I'm a child of God. Hallelujah.
and I am a soldier of Jesus Christ. मेरे दिल में ऐसी आया कि मैं यीशु क्रिस्त का दास हूं और मैं परमेश्वर के सेना का अंग हूं. तो मैं ऐसा मार्च करने लगा. तो जो मेरा जो सीनियर था उसने थोड़ा टाइम के बाद एक विश्राम है. There is a pause, there is a resting period in between the march. Then he came to me and said, ऐसा मत चलो, तू थक जाओगे. You don't walk with such passion and zeal. You'll get tired and get exhausted. It's very hot. तब मुझे याद आया, I was walking with the heavenly army in my mind. मेरे मन में मैं स्वर्गीय सेना के संग मार्च कर रहा था. Do everything wholeheartedly. ऐसा प्रभु कहता, वचन कहता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेंगे. तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो. Amen. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. You are serving the Lord Jesus Christ, of whom we are. We are serving Him, of whom we are. Amen. मैं जिसका हूँ उसकी सेवा मैं करता हूँ. पूरे दिल से करता हूँ. सारे मन से करता हूँ. Hallelujah. पवित्र आत्मा की सहायता से, ताकि वो अधिक महिमा पाए. Hallelujah. That all glory may be His. When mine all remains His and His forever, He receives all the glory. जब मेरा पूरा पूरा यीशु के लिए अर्पण करता, पूरा महिमा वो पाता. हम आगे बढ़ता. अभी इब्रानियों की पुस्तक में चले जाता. We move from there to the book of Hebrews, the letter to the Hebrews, and we go to the 13th chapter. तो उसका आगे अध्याय नहीं है हिब्रू में, तो हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा. 13वां अध्याय का 15वां वचन. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें. थ्रू हिम देन लेट अस कंटिन्यूअली ऑफर अप a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge His name. Hallelujah. हम सदा सर्वदा स्तुति रूपी बलि चढ़ाते रहेंगे. आमीन. यीशु क्रिस्त के द्वारा जिसने हमारे लिए जीवन दिया, उसको पहले का वचन पढ़ते तो सब पता चलता. हमें अपनाने के लिए जिसने अपना प्राण रख छोड़ा, उसने लहू बहाया, उसके निमित्त हम धन्यवाद की बलि, स्तुति बलि निरंतर चलाते रहे. May we continually offer unto Him such thanks offering and praise offering because of the one who laid down His life for us, that will please God. Let this life be to the praise of my Master and my Lord. मेरे प्रभु की महिमा के लिए जीवन बन जाए. जैसे मरियम ने कहा, My soul magnifies the Lord. Hallelujah. मेरा प्राण उसको महत्व देता, उसकी महिमा करता. हम याकूब की पत्रिका में आता, सिर्फ एक वचन पढ़ता, 4 अध्याय का 7वां वचन. इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. Hallelujah. Submit yourself before God, therefore to God. Resist the devil, and he will flee from God. The one who opposes my being totally God's and Jesus Christ is the enemy, devil, Satan. मैं यीशु का, उसके कारण परमेश्वर का पूरा पूरा बनकर रहने का विरोध करने वाला एक ही दुश्मन है, वो शैतान है, दुष्ट आत्मा है. मैं उसका विरोध करूंगा तो मैं परमेश्वर का हाथ का अधीन बने रहूंगा. Hallelujah. The devil hates it when I surrender myself to him, when I do his blessed will. मेरे पास इतना समय नहीं है, फिर भी मैंने ये पिछले दिन एक बात सुना कि परमेश्वर के कुछ लोग, एक परिवार ऐसे ट्रेन में सफर कर रहा था, तो उसको बाजू में कोई तो बैठा था और वो लोग कुछ स्नैक्स खाते थे. तो वो लड़का को भी ऑफर किया. तो लड़का ने कहा कि हम नहीं खा सकता क्योंकि मैं उपवास करता. तो ये लोग बड़ा खुश हुआ, रहे विश्वासी है, एक विश्वासी मिल गया तो सहयात्री के रूप में. So they were very happy that someone who is traveling with them in the train is a believer, because he said, I cannot eat anything today because I am fasting today. So they were very happy. And they said, we are very happy to know that you are a believer. तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत खुश है कि तुम विश्वासी है. तो लड़का ने कहा, मैं ऐसा विश्वासी नहीं है, मैं शैतान का विश्वासी हूं. He said, I am a satanic worshipper. ये लोग हिल गया.
पूछा तू एक मसीही परिवार का है, you belong to a Christian family, and how come you become a devil worshipper, a satanic worshipper? He said, because he gives me everything. God doesn't give me everything, he gives me only what he likes. तो उसने का उत्तर है, परमेश्वर मुझे सब कुछ नहीं देता, जो उसका पसंद का है, उसका हित का है वो देता, लेकिन शैतान मुझे सब कुछ देता, इसलिए मैं ऐसा उसके लिए कुछ भी करूंगा, मैं उपवास रखूंगा। हम लोग प्रार्थना करता है, एंड ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस। उसने कहा कि ये जो बॉस है, ये दूसरा बॉस जो है स्वामी, वो बहुत ऐसे कठोर है, बोलता है प्रार्थना में कुछ तकलीफ हुआ या उपवास में कुछ गलती हुआ तो वो मिटाएगा, बट ही विल डिस्ट्रॉय अस इफ यू गो अगेंस्ट हिज विल। हाउ ब्लेस्ड आर वी दैट जीसस हैज made us his own by adopting. यीशु ने हमें गोद लिया, अपना बनाया, हम कितने धन्य हैं। हालेलुया। और लड़का ने कहा हम लोग सिर्फ एक तरह के लोगों की विरोध करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारा विरोधी कौन है, हर धर्म का विरोधी है क्या? Do you oppose all the religions? He said no. We have only one kind of enemy. एक की तरह की दुश्मन है, जो बाइबल को मानता है, उसको वचन के अनुसार चलता। बाइबल लेके घूमने वाला हमारे दुश्मन नहीं है, बाइबल का वचन के अनुसार चलने वाले सब हमारे दुश्मन है। उन्हें मिटाने के लिए हमारा बॉस ने हमें नियुक्त किया है। Our master has appointed us to destroy those who walk according to the word of God. Nobody else is our enemy. वही दुश्मन है, उसका विरोध करो। यहां हम पढ़ते उसका विरोध करो, परमेश्वर का हाथ का अधीन हम बने रहेंगे। We never belong to the devil. We will never belong to him. हम कभी भी शैतान का नहीं है, हम उसको गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर के, यीशु के हैं, उसका हाथ का अधीन बने रहेंगे। आमीन आमीन। पहले पत्रस दूसरा अध्याय 1 Peter chapter 2 verse 5, दूसरा अध्याय का 5वां वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राही है। You yourself are being built together as living stones, as a spiritual house, to be holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Hallelujah. हम चुने हुए लोग हैं ऐसा बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बलिदान। आरंभ से हमने आरंभ किया, हमने हाबिल की बलि को देखा। We looked at Abel's sacrifice that pleased God. अभी कहते हैं कि वो भी एक परछाई रहा, even that was a shadow. But he says you are the people of God. तुम परमेश्वर का अपना जन है, ऐसा बलि चलाने के लिए नियुक्त किए हुए याजकों का समाज है। You are that priesthood. Hallelujah. ഹബേലിന്റെ യാഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ അവന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജകീയ പുരോഹിതന്മാർ നാമത്രേ, नामत्रे അവന്റെ विशुद्ध मंदिरम। इतना ही नहीं, हम याजक लोग हैं, हम उसका पवित्र मंदिर भी है। हालेलुया। We are the holy tabernacle of his son. हम ऐसे बलि चढ़ाएंगे, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। This life will be to magnify him. This life will be always to please him. हालेलुया। हम वहां से आगे बढ़ता, हम उसका चौथा अध्याय का 11 पढ़ता, चैप्टर 4 वर्स 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो कि मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करो जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। हालेलुया। Whosoever speaks, speak as if you are the oracle of God. Whosoever serves as the one who serves by the strength that the Spirit, Holy Spirit supplies, God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम मुंह खोलते परमेश्वर की बात कहते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन बोलते सिखाते हैं। हालेलुया, हम सही सिखाएंगे, हर वचन को सही समझेंगे। We will understand the word rightly by the help of the Holy Spirit. Hallelujah, we interpret the word rightly by the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से सही व्याख्या करेंगे, सही बात कहेंगे। हालेलुया, सेवा करेंगे तो पवित्र आत्मा में करेंगे। By the help of the Holy Ghost, by the empowering of the Holy Spirit, मैं भी वो, इसलिए हमने पिछले दिनों में देखा, वो हमें सामर्थ्य देता है, अधिकार देता है। Hallelujah, we know our God, we know His heart, now we know His desire concerning us. हम परमेश्वर को जानता, हम यीशु को जानता, उसका हृदय का आग्रह मेरे विषय में और आपके विषय में क्या है, आज स्पष्टता से हमें प्रकट किया गया है। He has revealed His heart to us concerning each one of us, what He desires of us. Hallelujah, उसकी महिमा प्रकट हो यीशु मसीह के द्वारा। महिमा और राज्य और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। Hallelujah, power and glory and majesty and dominion belong to Him and Him forever and ever and ever, amen. Amen. 5वें अध्याय का 7वां वचन खत्म करते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Casting all your anxieties on Him, because He cares for you. I would love to close with this comforting verse and with this assurance. परमेश्वर में यकीन दिलाता, हम बने रहेंगे, उसका बने रहेंगे, सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ेंगे, वो हमारे ख्याल करता, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതുകൊണ്ട് സകല ചിന്താകളും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുകയും। आमेन आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आए हैं तेरे हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, तेरे वेदी पर अपने आप को लटाना चाहता है। आप हमारी सहायता कर, पूरा पूरा मैं तेरा बनकर रहना चाहता। I want to be holy, thine and thine alone. सिर्फ तेरा बनकर रहना, तेरी महिमा के लिए जीवन जीना चाहता। अब्बा अब्बा, may this life be only to glorify thee, O Master, for your glory. May this life be to please you, O Lord. तुझे प्रसन्न करने वाली जीवन बने प्रभु। मैं आता प्रभु, बहुत कुछ खोया प्रभु, माफ कर। बहुत कुछ नष्ट कर दिया, माफ कर प्रभु। मैं आता हूँ, I come back to you to be thine and thine forever. तेरे बनकर रहने के लिए मैं आता, परिवार के साथ आता, पूरे मंडली के साथ आता, मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ आता। I come with my entire families, my congregation, to be totally thine and thine alone, O Master. Grant unto me grace to be thine forever. Amen. तेरे ही बने रहने के लिए मेरे ऊपर कृपा बरसा, महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आया और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के और दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे, खास कर कोविड 19 महामारी के कारण और भी अलग अलग तरह की फंगस की बीमारियों के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, उसकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, यीशु के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। करुणामय और प्रेमी परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, सारे भाई बीत को हटाए, हिम्मत दे, शांति दे और चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमेन और आमेन। May the most gracious Lord be with you all, meeting all your needs according to riches in glory, keep you safe and sound and in perfect health, in Jesus name, amen. God bless. मैं आप सबों को अति सुंदर और आशीषित धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a very happy, blessed, glorious Lord's Day. Amen. God bless.